Good evening, ladies and gentlemen. On the behalf of DAN College of Education for Women Nawa Shahar and CTEF Punjab and Chandigarh chapter, I welcome you all on the third day of workshop on lesson planning. I extend my heartiest welcome to the resource person of today's session, Mr. Ajay Khosla. Before starting today's proceeding, I would like to ask some questions to all of us. What do you think? What is the real aim of education? Whether it is confined to academic achievement only? What do you think? Which is best school, college, or university is in your area and why? Have you ever witnessed advertisement of an educational institution where the institution is highlighting its achievement only in the form of photographs of the toppers of the school or college, 100% results, more than 90% students are getting more than 80% marks, and so on. Since last 1.5 years, all of the world is facing a pandemic situation due to COVID-19. And in India, what we have witnessed? We have witnessed exploitation. We have witnessed black marketing of essential commodities, life-saving drugs, and even oxygen. One person was dying due to COVID-19 and other one was exploiting this situation to earn more and more money. India has shown tremendous growth in its educational setup. We have witnessed large number of schools, colleges, and universities opening all over in the India since the independence. Our educational institution may have proudly claiming that our education system is producing maximum number of engineers, doctors, MBAs, professionals, or else. But what about real human beings? We must have a thought on this issue. Now, before proceeding further, I request Mrs. Rajni Bala to present the yesterday's report. Mrs. Rajni Bala. Thank you, ma'am. Very good evening to all of you. I feel highly pleased to present the report of second day of workshop on lesson planning, organized by IQAC of DN College of Education for Women, Namashar, in collaboration with CTEF. Dr. Yogesh Sharma, Assistant Professor of Ramgarhia College of Education, Pagwada, was a resource person who presented the model-based lesson planning in a very effective way. He explained the concept, types, and steps of model lesson plan by using PPTs. He also presented the concept attainment model by taking the response of participants in the chat box. It is also observed at that time many participants respond by using chat box. He also explained the steps used to frame a lesson plan of concept attainment model. Format for framing lesson plan on concept attainment model was also discussed by the resource person. At last, there was a question answer session. The resource person satisfied the participants who had inquiry regarding the lecture. Mrs. Karuna Bright thanked the resource person at the end of the session. Overall, the second day of workshop was full of knowledge and interesting. Last but not least, we are thankful to all the participants to show their interest, patience, and devote their precious time for this workshop. Thanks. Now it's over to Dr. Vikas. Thank you very much,
Mr. Rajni Balla. So today's session is on lesson planning based on value-based lesson planning. This is very important concept, not only for the purpose of the B.Ed students, but because if we want to really change the educational setup of our schools, if we really want to inculcate values among our students, then this is very, very important. And today's and we couldn't have find a much better person than Mr. Ajay Khosla, who is assistant professor at DAV College of Education, Abohar. College of Education, Abohar, where both have studied together in way back 1999. We both have learned many things from that college. So the college brings smile on the faces of both of us. It is but natural. Mr. Ajay Khosla is MA History, MEd, UGC NET, MPhil. He has published many research papers. He has acted as a resource person in many conferences, seminars. But the most importantly, he is involved in capacity building program of more than 100 CBSE schools. We have witnessed him in different CBSE schools all over the Punjab, giving different lectures on different topics. He is associated with the different teachers of the CBSE schools, principals. Therefore, it is very important for us. It is very much important for us that we have a person who has really knowledge of the school system and how the school system is actually working and how they are governing their various concepts, value bases or others. Now I request Mr. Ajay Khosla to start the proceeding. Thank you so much, Vikas sir, for this nice introduction. And thank you so much for this kind invitation. I'm grateful to all the faculty members, especially the head of the institution for this kind invitation. और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस एक्सपेक्टेशन से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया मैं उस पर खरा उतर पाऊंगा. टॉपिक जैसा आपने कहा कि बहुत रेलिवेंट है और बहुत कुछ इसमें समझने की जरूरत है. मैं पहले तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो काइंडली आप एक्टिव बहुत रहिएगा कमेंट बॉक्स में. तो आई विश टू मेक दिस वर्कशॉप अ टू वे प्रोसेस, टू वे डायलॉग ओरिएंटेड प्रोसेस. तो मैसेजेस जो हैं वो मैं आपके पढ़ता रहूंगा और जहां पे जरूरत पड़ेगी आई विल इनकॉर्पोरेट ऑल द क्वेश्चंस और क्वेरीज पुट अप बाय द पार्टिसिपेंट्स इन माय लेक्चर. ये पहली बात है. सेकेंडली, जैसे मैं विकास सर से बात कर रहा था कि 10 मिनट हम एंड में फिर से रखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए. तो आपका कोई भी जो रेलिवेंट क्वेश्चन है काइंडली अगर आप वहां नहीं पूछ सकते कमेंट बॉक्स में या मेरे से मान लीजिए इग्नोर हो गया तो आप इसको लिख लीजिए और 10 मिनट आपको जरूर वहां पर हम डिस्कशन करेंगे. ज्यादा टाइम लगेगा मुझे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हम जस्टिस जरूर करना चाहेंगे इस थीम के साथ जो अपने आप में बहुत रेलिवेंट थीम है और हम सबको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस थीम की डेप्थ में कैसे पहुंचे. दूसरी बात, मुझे वसीम बरेलवी साहब के कुछ अल्फाज याद आते हैं, वहां से बात शुरू करूंगा कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है. ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती. मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे में वो सलीका है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊंगा और आप क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत लर्नर्ड पर्सनैलिटीज हैं. DAN कॉलेज ऑफ एजुकेशन नवा शहर बहुत टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ. विकास सर और मैं B.Ed एक साथ थे और हमने प्ले में काम भी किया था, सर को याद होगा. और इंटरजोनल लेवल पर हम मुकेरियां गए थे. दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस और आज भी उन चीजों को याद करके बहुत हम बढ़िया फील करते हैं. तो विद योर काइंड परमिशन आई एम गोइंग टू शेयर माय PPT फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू सो मच. Yes, sir, visible. Very much. Thank you so much, sir. So should we start now? Yes, sir, definitely. Okay, thank you. So welcome all in this workshop on value-based lesson planning. I'm Ajay Khosla from DAV College of Education, Abohar. First of all, let's discuss what value is all about. सुबह विकास सर ने जब शुरुआत की थी ना अपने इस सेशन की आज शाम को, he was talking about values. और उसमें एक सर ने एक बात कही कि जब कोरोना टाइम में हमने क्या देखा कि एक तरफ हमारे पास सोनू सूद या ऐसे NGOs थे जिन्होंने अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज के साथ दूसरे लोगों की हेल्प करी. और उसी सोसाइटी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करी, जिन्होंने होर्डिंग करी और जरूरी चीजों के जो रेट हैं वो कई गुना बढ़ाकर बेचा.
अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं। और बेसिक जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव उसमें क्या होता है कि कैसे हमारे पास वैल्यू ओरिएंटेड सिटीजन्स जो हैं हमारे पास आए। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हम छोटे थे तो मॉर्निंग असेंबली में, हमारे कॉलेजेस में आज भी एक ट्रेंड है बीएड कॉलेजेस पे, कि हम वैल्यूज पर बात करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्ट्रेंथ, ठीक है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपको ये फॉलो करनी चाहिए। तो जब हमारा पूरा थीम जो है वो वैल्यू बेस्ड लेसन प्लानिंग पर है, तो पहले हमें ये क्लैरिटी हो कि वैल्यूज है क्या। सो बेसिकली वैल्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीजें जो हैं वो वैल्यू बेस्ड ऑब्जर्वेशन से हमें क्लियर होती है। एंड दीज आर सोशली अप्रूव्ड डिजायर्स एंड गोल्स दैट आर इंटरनलाइज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, लर्निंग और सोशलाइजेशन। सो जब आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं तो सोसाइटी जो है वो बेसिकली ऑनेस्टी को वैल्यू दे रहा होता है, और आप उन चीजों को अपने अंदर कैसे इंटरनलाइज करते हैं थ्रू कंडीशनिंग, लर्निंग और सोशलाइजेशन। और ये आपके लिए सब्जेक्टिव प्रेफरेंस बन जाता है, स्टैंडर्ड बन जाता है, एस्पिरेशंस बन जाता है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे पास वैल्यू बेस्ड बच्चे, जो हमारे घरों में बच्चे हैं, हम उनके लिए चाहते हैं कि बच्चा बड़ा संस्कार वाला हो। तो मैं ये देखता हूं कि वैल्यू को लेकर हम क्लियर तो बहुत है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन के जरिए जिस तरह की वैल्यूज को प्रेपोगेट हमें करना चाहिए, उन चीजों की लगातार हम इरोजन होता देख रहे हैं अपने पूरे स्कूल सिस्टम में, अपने पूरे कॉलेज सिस्टम में या यूनिवर्सिटी लेवल के सिस्टम। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस थीम का रैशनल क्या है, व्हाई दिस थीम हैज बीन चूजन। और मैं ये चाहूंगा कि आप भी अपने साथ हमें कमेंट लिखते रहें कि ये जो लेसन प्लानिंग है उसमें वैल्यूज का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात। व्हाई दिस एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू इज सो वाइटल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और तीसरा, व्हाई एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज इज सो वाइटल इन ह्यूमन लाइफ। ये बार बार जो बात वैल्यूज पर आकर अटक जाती है, ये क्यों होता है? क्या रीजन है कि आईआईटीज के जो इंजीनियर्स हैं आज उनको सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ताकि उनका जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो उनका अफेक्टिव डोमेन है, वो एक्टिव रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वो इतने मेटेरियलिस्टिक बन जाएं कि कल को जो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं उनको वो इग्नोर कर दें अपने मोमेंटरी बेनिफिट के लिए, और बाद में उसका नुकसान जो है पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को उठाना पड़े, पूरी सोसाइटी को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो इस कंटेक्स्ट में मुझे ये लगता है कि अपनी एजुकेशन के जरिए, जो लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट है उसके जरिए, हमने स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि जो भी टॉपिक वो टीच करें उनमें से वो कैसे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, वैल्यूज को ट्रांसफर कर सकते हैं और वैल्यूज को एम्फसाइज कर सकते हैं। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम, वैल्यू बेस्ड सिटीजन्स को तैयार कर। अब कई कमेंट्स आ रहे हैं कि हम वही होते हैं जो हमारी वैल्यूज होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक ये लेटर जो मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं, हैम गेनॉट की एक लेटर थी। जब हिटलर का जर्मनी में बोलबाला था तो उसने ना कई ये कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे जहां पर अपने ओपोनेंट को उसने कैद कर दिया, उनको मार दिया बहुत टॉर्चर करके। एक पर्सन हैम गेनॉट नाम का, ही वाज द सर्वाइवर ऑफ दिस हॉलोकास्ट। वो एक लेटर में लिखता है अपने टीचर को, Dear teacher, I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness. Gas chambers built by learned engineers, children poisoned by educated physicians, infants killed by trained nurses, women and babies shot and burned by high school and college graduates. So I am suspicious of education. My request is help your students become human. Your efforts must never produce monsters, skilled psychopaths. Reading, writing, and arithmetic are important only if they serve to make our children more human. अब इस लेटर के कंटेक्स्ट में अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक रैट रेस में पड़े हैं सारे। बच्चों के मार्क्स तो बहुत आ रहे हैं, पंजाब एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट आया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। चाहे कोरोना टाइम है,
संगरूर का एक स्कूल है, 171 उसमें स्टूडेंट्स थे, 79 स्टूडेंट्स गॉट 650 आउट ऑफ 650 मार्क्स। मार्क्स की बातों में एक बार छोड़ देते हैं, बट क्या एजुकेशन के जरिए कैरेक्टर बिल्डिंग हो पा रही है? क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉजिकल थिंकर बन पा रहे हैं? क्या वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन पा रहे हैं? क्या वो रैशनल एटीट्यूड के साथ टीच करते हैं या वो पढ़ते हैं? तो इन सारी बातों के कंटेक्स्ट में इस थीम पर डिस्कशन करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसीलिए इस थीम के बारे में बात की गई। और इसके साथ साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए, जब वैल्यूज की बात करते हैं, कि अल्टीमेटली थिंकिंग प्रोसेस को इग्नाइट करना ये हमारी एजुकेशन का एक और बेसिक पर्पस। आप ये देखिए, ये सोचिए कि इंसान और एनिमल्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारे पास सुपीरियर इंटेलेक्ट है, हमने अपनी गलतियों से सीखा, और इसी वजह से प्रिमिटिव मैन से लेकर आज तक हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली, हमने उन एनिमल्स को भी टेम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, डोमिनेट कर लिया, जो ताकत में हमसे कई गुना ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द सुपीरियर थिंकिंग एबिलिटी। तो वैल्यू सिस्टम के साथ साथ थिंकिंग एबिलिटी के बारे में बात करनी जरूरी है। बाद में मैं क्या करूंगा, मैं इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। So thinking है क्या? It is the ultimate cognitive activity we all use to process information, solve problems, make decisions, and create new ideas. And through thinking, we consciously use our brain to make sense of the world around us and decide how to respond to it. आप अपने थिंकिंग के जरिए इस दुनिया को समझते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एस्पिरेशंस को डिसाइड करते हैं। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब हमारी दिक्कत क्या है? हमने अपनी एजुकेशन के जरिए बेसिकली क्या किया, हमने कॉग्निटिव और जो साइकोमोटर लेवल पर तो ज्यादा फोकस किया, हमने ज्यादा फोकस वैसे किया कॉग्निटिव लेवल पर, हम अफेक्टिव डोमेन को थोड़ा सा एम्फसाइज करना भूल गए। जितनी भी आप रैट रेस मार्क्स की बात करते हैं, वहां पर वैल्यू ओरिएंटेशन कहीं पीछे रह गई। इसी वजह से जब आप टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे, तो टॉपिक को अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, पर उससे क्या वैल्यू सीखने वाली है उसके बारे में जब डिस्कशन होती है, आप सवाल पूछते हो, तो वहां पर आपको लगता है कि नहीं, इनका वो बेस क्लियर नहीं हो पाया, जिस बेस को क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप गांधीयन फिलॉसफी को पढ़ रहे हो, तो आपने गांधीवाद से सीखा क्या है? अगर आप भगत सिंह को पढ़ रहे हो, तो आपको भगत सिंह की लाइफ से कौन सी वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, कंपार्टमेंटलाइज लर्निंग और थिंकिंग चल रही है। वी आर थिंकिंग इन कंपार्टमेंट्स। दिस वर्ल्ड इज ऑफ ए सिंगल पीस, yet we invent nets to trap it for our inspection, then we mistake our nets for the reality of the piece. दुनिया इतनी ब्रॉड है, कोई टॉपिक है उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, हम सिर्फ क्या करते हैं, एक पर्सपेक्टिव को पकड़कर उसके आसपास की चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हमारा जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड नहीं। तो हमें पता होता है कि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, उसका ये एक्सपेक्टेड आंसर बनता है जो हमारी इस किताब में है, हमने वहां से उसको उठाया, वहां पर लिख दिया, हमारे मार्क्स आ गए। इस पूरे प्रोसेस में जो वैल्यूज पर फोकस होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया। तो इस पूरी डायलॉग में हमने यही चीज डिस्कस करनी है कि वैल्यूज को लेकर जो लेसन प्लानिंग में हमने उनको कैसे इनकलकेट करना है, और लोकेट कैसे करना है कि किस टॉपिक में हम किस वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। अब्राहम मास्लो की एक कोट है, इफ द ओनली टूल यू हैव इज ए हैमर, यू टेंड टू सी एवरी प्रॉब्लम एज ए नेल। अगर मेरा एक ही पर्सपेक्टिव होगा तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से पूरी सिचुएशन को देखूंगा, मैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को माइंड में नहीं लेके आऊंगा। निदा फाजली साहब कहीं लिखते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अब ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव को डेवलप करना यही एजुकेशन का पर्पस भी है, ताकि आपके पास अलग अलग तरह का नजरिया बने किसी भी टॉपिक को अटेम्प्ट करते वक्त। अगर हम ब्लूम की अफेक्टिव डोमेन को देखें, जहां पर वैल्यू सिस्टम की बात कही गई है, तो ब्लूम ने क्या कहा, आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी को बार बार पढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि अगर हमने एमसीक्यूज को डिजाइन करना है या अच्छा टीच करना है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी पर हमारी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। हम क्लास में क्या करते हैं, वी रिसीव। मान लीजिए मैंने टॉपिक करवाया फंडामेंटल राइट्स का,
आप पहले रिसीव करते हैं टॉपिक को कि यस अजय सर हैज डन दिस टॉपिक इन द क्लासरूम, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट इज एबिलिटी टू पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली, रिस्पेक्टफुली एंड एक्टिवली एज एप्रोप्रिएट टू द कंटेक्स्ट। आपने रिस्पॉन्ड किया, फिर आपने पूरे टॉपिक में वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया कि आप इनमें से उस कंटेक्स्ट में किन वैल्यूज को लोकेट कर पाए। देन यू ऑर्गेनाइज। अब ये ऑर्गेनाइज क्या है? एबिलिटी टू स्ट्रक्चर, प्रायोरिटाइज और रिकंसाइल पर्सनल एंड अदर्स वैल्यू सिस्टम। अब ये देखते हैं कि इसमें वैल्यू सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनलाइज। जब आप अपने बिहेवियर में उस वैल्यू को इंटरनलाइज करते हैं, मतलब आपके बिहेवियर में वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए गांधीयन फिलॉसफी को हम पढ़ रहे हैं, आप जब क्लास में बैठे हैं और टीचर ने गांधीयन फिलॉसफी पर डिस्कशन शुरू करी, यू रिसीव दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आप उस वैल्यू को समझते हैं जिस वैल्यू को इनकलकेट करने के लिए उस टॉपिक को आपके सिलेबस में ऐड किया गया, फिर आप उस वैल्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो वैल्यू झलकनी शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। ये पूरा सर्कल बनता है आपका अफेक्टिव डोमेन का, जो ब्लूम ने कहा। दैट मीन्स अगर आप टॉपिक जो भी कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स उस टॉपिक के जरिए टीचर ने आपके अफेक्टिव डोमेन को नहीं एक तरह से टैप किया। और अगर आपका अफेक्टिव डोमेन वहां पर टीचर ने टच नहीं किया, अगर मैं या आप नहीं समझे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक किस वैल्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ है और मुझे यहां से क्या सीखकर अपनी पर्सनैलिटी में लेके आना है, तो अपने आप में वो पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वैल्यू इनकलकेशन का, वो फेल हो जाता है। आपको कॉग्निटिव लेवल पर तो पता है कि व्हाट इज गांधीयन फिलॉसफी या व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ भगत सिंह, बट जब तक आप यहां से उसको फील नहीं करते कि इसमें वैल्यूज क्या हैं, किन वैल्यूज को इंटरनलाइज करना है, किन वैल्यूज को हमने नहीं छेड़ना, ये अपने आप में ब्लूम ने जो बात कही। आई होप यू आर गेटिंग मी, काइंडली बी इन्वॉल्व। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ओके, थैंक यू जसमीन कौर मैम। सो ये देखिए अफेक्टिव डोमेन की जो ब्लूम ने बात करी थी, उसके बाद मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा। जब रिसीविंग की बात आती है तो इसमें अवेयरनेस, लिसनिंग, अटेंशन ये शामिल होता है। रिस्पॉन्डिंग में क्या आता है? जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली रिएक्ट करते हैं। ओके, फिर वैल्यूइंग में क्या आता है? आपको उसकी वर्थ का पता चलता है, आप एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू सिस्टम को। फिर आप आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पर, जब आप सब चीजों को सिंथेसाइज करते हैं, रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। और लास्ट में क्या होता है? जब आप कैरेक्टराइजिंग करते हैं, दैट मींस आपके बिहेवियर में, आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी में वो वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। ये सारा कुछ ब्लूम ने इसलिए कहा ताकि अफेक्टिव डोमेन को साथ में इन्वॉल्व किया जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक प्ले देख रहे हैं ऑन द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो जो जो उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया, ये तो आपकी कॉग्निटिव डोमेन का कॉन्सेप्ट है, पर आपने सुभाष चंद्र बोस के लाइफ से क्या सीखा, ये आपका अफेक्टिव डोमेन है। और अगर आपने कोई स्किल सीखी है किसी भी एस्पेक्ट में, तो वो आपका साइकोमोटर डोमेन है। तो बेसिकली टीचिंग में आप साइकोमोटर डोमेन को कम टच करते हो नॉर्मली, अफेक्टिव और कॉग्निटिव लेवल को आप ज्यादा टच कर सकते हो। साइकोमोटर के लिए आपको अलग से वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करनी पड़ती है। तो जॉन डीवी की बड़ी कमाल की कोट है, इसको वैल्यू से मैं जोड़ूंगा यहां पे। वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। जब तक हम एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम नहीं सीख सकते। लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, हर एक से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, अगर उन पे रिफ्लेक्ट करें तो। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम सबको यह समझना पड़ेगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, जो कॉल्ब ने दी थी, ये हमारी एजुकेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कैसे है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी डॉट्स को कनेक्ट करूंगा, जो मेरा काम है। ये एक बार हम इन सारी चीजों को टच कर लें कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। जब कोरोना टाइम विकास सर ने शुरुआत करी बात की अपनी,
कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि जब पहला जो लॉकडाउन हुआ था, लाखों मजदूर जो थे वो महाराष्ट्र से, दिल्ली से अपने घरों की तरफ वापस मुड़े। कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, और अखबारों में पेज भरे हुए थे उन लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। ये आप सबका कंक्रीट एक्सपीरियंस था कोरोना के बारे में। आपने लोगों को देखा माइग्रेशन करते हुए, जो लेबरर्स थे। दैट वाज द कंक्रीट एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग को मानते हैं, इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उस कंक्रीट एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। फिर आप उन सारी चीजों को रिव्यू करते हैं और एंड में आप एक प्लान तैयार करते हैं कि अगर कल को फिर से लॉकडाउन होता है तो इस बार हम क्या बेटर करेंगे पिछली बार के मुकाबले, ताकि इस बार हमें सिचुएशन में डिफिकल्टीज को कम फेस करना पड़े। ये साइकिल है पूरा कॉल्ब का, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग साइकिल। एक्ट, रिफ्लेक्ट, कॉन्सेप्चुअलाइज एंड अप्लाई। आपने एक चीज को देखा, एक्सपीरियंस किया, दैट इज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। आपने ये सोचा बैठकर कि व्हाट डिड आई एक्सपीरियंस, ये रिफ्लेक्शन का फेज है। फिर आपने ये सोचा कि व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ। और अप्लाई में क्या करते हैं, व्हाट विल आई डू इफ दिस थिंग हैपन अगेन, अगर फिर से ये हो जाए इस बार मैं क्या करूंगा। तो अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस करें तो हम अपनी एजुकेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को समझ जाते हैं। मैं अब डॉट्स को कनेक्ट करता हूं। अब मुझे ये बताइए, लेसन पे आते हैं। आप सबने ये एक इमेज देखी होगी, कोरोना टाइम में न्यूज़पेपर्स में आई थी, टीवी पर आई थी। व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस इमेज? ये इमेज आपने कहां पर देखी, और डू यू रिमेंबर कि आपने किस कंटेक्स्ट में इस न्यूज को पढ़ा था? एनी आइडिया? आपके मैसेजेस की वेट पर कर रहा हूं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस इमेज? A very prominent image in newspapers in first lockdown, laborers migration. Okay, न्यूज आई थी लेबरस माइग्रेशन की, लोग घरों में वापस जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर ये टॉपिक मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, अगर मैं ये न्यूज कटिंग दिखाता हूं अपनी क्लासरूम में, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज और वैल्यू इरोजन कैन बी आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम दिस पिक्चर? अगर आप क्लास में ये टॉपिक करवा रहे हैं, मान लीजिए सोशल मोबिलिटी का, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, बीएड में ये टॉपिक्स हैं, किस वैल्यू को आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या किस वैल्यू क्राइसिस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लेबर्स माइग्रेशन इज ओके, यू हैव आइडेंटिफाइड दिस टॉपिक। हाँ जी, ये आप कंटेक्स्ट बता रहे हैं। नो हेल्प, गुरलीन कौर इज सेइंग नो हेल्प। Okay, poor woman was carrying her child on luggage. Okay, migration, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, वैल्यू इरोजन को लेकर अगर आप अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं, इस तस्वीर इन ह्यूमैनिटी, वे एग्जैक्टली ये जो पेंडेमिक था इसने ये बताया कि कई बार लोग जो हैं वो कितने इनह्यूमन हो जाते हैं, कितने वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, या हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है वो कितना कमजोर था, लोगों का फेथ कितना इरोड हो गया था पूरे सिस्टम में से। इनसेंसिटिविटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इनह्यूमैनिटी, नो हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब एक तस्वीर से आप कई तरह के वैल्यू इरोजन को जज कर सकते हैं। और इसी सिचुएशन में आपको मैं पहले बता रहा था, कई आपको एग्जांपल मिलेंगे जब कई लोगों ने, एनजीओज ने रिमार्केबल काम किया ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए। खालसा एड ने जी लंगर लगाए, कई एनजीओज ने, आर्य समाज, एनजीओ कई हैं जिन्होंने अपना जगह जगह पर लोगों को हेल्प करा। इन एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज टू द वर्कर्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा पर्टिकुलर हो जाऊं, तो अगर मैं कुछ वैल्यूज की बात करूं, आप इसको देखना कि मैं सही हूं कि गलत हूं। अगर मैं कहूं कि लैक ऑफ एम्पैथी, वाज इट इन्वॉल्व द पिक्चर, लैक ऑफ एम्पैथी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी? क्या ये मैंने देखा कि सरकार और जो सोसाइटी है
उसमें एम्पैथी की कमी थी। तो ये लैक ऑफ एम्पैथी हमने किया डिसाइड कि यस, यहां से ये चीज सीखने वाली है कि सोसाइटी में ये ट्रेंड चला। क्या हम यहां बता सकते हैं, जब मैं एग्जांपल देता हूं एनजीओ की, खालसा एड की, आर्य समाज की, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन में भी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, कि लोगों ने कोऑपरेट भी किया, लोगों ने कोऑर्डिनेट भी किया। तो वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये वहां पर हमने देख लिया कि ये चीजें वहां से सीखी जा सकती हैं। वैल्यू ऑफ सेल्फलेस एटीट्यूड, वैल्यू ऑफ सेल्फलेस एटीट्यूड, वैल्यू ऑफ सिंपैथी, वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी जिन लोगों ने दिखाई। मतलब एक ही पिक्चर में आपने वैल्यूज और वैल्यू सिस्टम में इरोजन को क्या किया, काइंडनेस की वैल्यू, वैल्यू ऑफ लव, वैल्यू ऑफ दिस कंपैशन। तो एक पिक्चर आपके सामने आई, आपने एक ही पिक्चर से वैल्यू को लेकर दोनों एस्पेक्ट को क्या किया, वहां पर डिस्क्राइब कर। तो अगर हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा और जनरेट करें, क्योंकि बेसिकली हमारी पूरी एजुकेशन के सिस्टम में समझने वाली वैल्यू ब्रदरहुड, वेरी गुड, वैल्यू ऑफ सेल्फलेस एम्पैथी, यूनिटी, एग्जैक्टली। तो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लर्निंग टू थिंक जो है वो हम सबको, बच्चों को सिखाने की जरूरत है क्लास में। क्योंकि मेजॉरिटी टाइम हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो सोच नहीं रहे होते, वो सिर्फ लोगों को फॉलो कर रहे होते। क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में कन्फर्मिस्ट एटीट्यूड को फॉलो किया जाता है। कन्फर्मिस्ट क्या है कि जो चीजें चल रही हैं उसको एज इट इज फॉलो करना, ना कि अपना अलग पाथ बनाने की कोशिश करना। उसी वजह से असर्टिवनेस की कमी होती जा रही है और कन्फर्मिस्ट इंडिविजुअल हमारे पास ज्यादा होते जा रहे हैं। और उसी वजह से जब आप बात करते हैं वैल्यू सिस्टम की, तो वैल्यू सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो इन डेप्थ सोचना, इंसाइटफुल सोचना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है एक। जो भी आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, आप जब स्कूल पढ़े, आप कॉलेज में हैं, हमारे ना जगह जगह कॉलेज में, स्कूल में सिलेंडर लगे होते हैं आग बुझाने के। कितने % लोग ऐसे हैं जो बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े इमरजेंसी में, फायर इमरजेंसी में उन सिलेंडर्स को यूज कर सकते हैं इंस्टेंटली? आपके स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, कितने % बच्चे उन सिलेंडर्स को यूज कर पाएंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े? कितने पहले से ट्रेंड है उन चीजों को याद? कोई भी नहीं, 1%। आपको लगता नहीं कि ये बड़ी हॉरिबल सिचुएशन है कि अगर हमारे स्कूल कॉलेजेस में 20-20 सिलेंडर लगे हुए हैं और अगर किसी को यूज करना नहीं आता, तो उनका होना या ना होना उसका कोई फर्क नहीं रह जाता। सिमिलरली टीचर्स को पता हो, चलो अच्छी बात है अगर पता है तो मेरा यहां पर यह मानना है कि अगर कोई भी लेसन पर करवा रहे हैं, अगर हमने वहां से वैल्यू सिस्टम को एक्सट्रैक्ट करना, लोकेट करना या यूज करना नहीं सीखा, मैं आज आपको कह रहा हूं गारंटी के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ, कि उस टॉपिक को पढ़ना और ना पढ़ना दोनों एक बराबर। अगर एक टीचर ने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वैल्यू को नहीं समझा, सिर्फ याद कर लिया कि जी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, वर्बल, नॉन वर्बल, नेगेटिव होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, पर उसको ये नहीं पता कि इन चीजों की एक्चुअल में वैल्यू कहां पे, तो टीचिंग कभी इफेक्टिव नहीं रहेगी। ये बड़ी बेसिक सी बात। थोड़ा आगे चलते हैं। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया का रैंक 144 है, पाकिस्तान का 66 है, फिनलैंड उसमें टॉप कर रहा है। 156 नेशन में से हम 144th रैंक पर। हमारे स्टूडेंट इस न्यूज को पढ़ते हैं, यहां से वैल्यू के अकॉर्डिंग सीखने वाला क्या है कि हैप्पीनेस के इंडेक्स पर हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी प्रेफरेंसेस को लेकर ज्यादा मेटरलिस्टिक होते जा रहे हैं और जो अल्ट्रुइज्म की फीलिंग है वो हमारे अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर लगातार कम होती जा रही है। जितनी भी न्यूज हम पढ़ते हैं, जितने आप टॉपिक्स को अटेम्प्ट करते हैं, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ वैल्यू छुपी होती है।
अगर मैं सोशल साइंसेस की बात करूं तो उसमें वैल्यू क्या होगी कि उसमें हम सीखते हैं सोशल सेंसिटिविटी, सोशल अवेयरनेस, knowledge about past, how to use that knowledge of past in present, how to make the present better. ये हमने सीखना है सोशल साइंसेस। अगर मैं साइंस को टीच कर रहा हूं, साइंस जो कॉन्सेप्ट को, तो वहां से ये सीखना है कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, वैल्यू ऑफ डाटा कलेक्शन, वैल्यू ऑफ वैलिडिटी, वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी, ये चीजें। अगर मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो वैल्यू ऑफ कोहेरेंस, वैल्यू ऑफ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट एट एनी गिवन प्रॉब्लम। अगर मैं लैंग्वेज को पढ़ रहा हूं तो मुझे ये सीखना पड़ेगा कि हाउ द वैल्यू ऑफ कंपैशन मे बी एक्सट्रैक्टेड बाय रीडिंग लैंग्वेजेस और रीडिंग मास्टरपीस। तो आपका कोई भी टॉपिक है, डजंट मैटर, आप उस टॉपिक के साथ वैल्यू सिस्टम को अटैच कर सकते हैं। वो कैसे करें? जैसे ये टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि जेंडर गैप में इंडिया का रैंक 108 है आउट ऑफ 153 इकोनॉमीज। ये न्यूज पढ़ी आपने, और वहां से सीखना क्या है? अगर मैं आज आपको बताऊं, आज यूपी में नेशनल यूपी का स्टेट कमीशन है विमेन, वहां की मेंबर एक अखबार में कह रही थी, न्यूज आई कि लड़कियां क्योंकि मोबाइल रखती हैं इसलिए रेप के चांस बढ़ रहे हैं, तो लड़कियों को मोबाइल रखना अलाउड नहीं होना चाहिए। ये एक फीमेल कह रही हैं जिनके जिम्मे है विमेन सिक्योरिटी को इंश्योर करना यूपी में। मैं इस न्यूज को पढ़ता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इनके हिसाब से तो लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जॉब में वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के चांस होते हैं। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इव टीजिंग के चांस होंगे। लड़कियों को अपनी बात नहीं कहनी चाहिए ताकि कहीं डोमेस्टिक वायलेंस ना हो जाए। मतलब आप देखो कि जिस सोसाइटी में ऐसे रिग्रेसिव लोग रहते हैं वहां पर जेंडर गैप तो अपने आप बढ़ेगा। और जब मैं क्लास में इस बात को डिस्कस करूं, किसी भी टॉपिक को मैं करवा रहा हूं, मान लो मेरा टॉपिक है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो बीएड का एक सब्जेक्ट भी, मैं इन चीजों को कोट करके अपने स्टूडेंट्स के अंदर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर फ्रीडम, इन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करूं, और उसके साथ साथ जेंडर प्रेजुडाइसिस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड को डेवलप करूं, ताकि वो बच्चा जब उसकी मैरिज हो, जब वो जॉब लगे या अपनी लाइफ में, वो इन चीजों को प्रैक्टिस ना करे। तो मैं एग्जांपल यहां पे क्या दे रहा हूं कि जो भी आपके न्यूज़पेपर की कटिंग्स आती हैं, हम कोरिलेशनल मेथड के जरिए बड़ी आसानी से आप इन चीजों को अपने सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके वैल्यू सिस्टम को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस एस्पेक्ट व्हिच आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू? आर यू गेटिंग मी? ओके। अब एक और बात आती है, कई बार अखबारों में, टीवी में मैं कई बार चर्चा करता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी यहां पे होंगे, दोज हु आर रजिस्टर्ड फॉर दिस वर्कशॉप। हम बार बार बात करते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, या बीच में एक न्यूज आई थी कि सिनेमा घरों में मूवी दिखाने से पहले नेशनल एंथम वहां पर रिसाइट किया जाएगा और सब लोग खड़े होंगे फॉर इन द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। अब तो सिनेमा ऐसा लगता है कि पता नहीं कब की बात है, 1.25 साल हो चुका है, सब कुछ बंद। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा एक बार क्लास में, एसएसटी की क्लास में, कि क्या आप इससे एग्री करते हैं? बच्चों ने कहा कि सर इसमें हर्ज क्या है? मैंने कहा हर्ज ये है कि कई बार गवर्नमेंट जो है वो हमारी लाइफ को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही होती है ऐसी चीजों के जरिए। जो भी नेशनलिज्म है, जो भी पेट्रोटिज्म है, ये बार बार दिखाने की चीज नहीं होती। कल को अगर सरकार कहे, गवर्नमेंट कहे कि हर शाम को 5 बजे सायरन बजेगा और आपने फिर नेशनल एंथम पर खड़े होना है, तो हम कहेंगे नहीं जी, ये क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करना है, वो धीरे धीरे करके आपको सिंबल्स के जरिए आपको ट्रैप करने की कोशिश करती है।
मैंने क्लास में पूछा कि भारत माता की जय जो आप बोलते हो, ये भारत माता है कौन? क्या भारत माता एक सिंबल है बस? क्या तिरंगा जो है वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है? कौन करता है राष्ट्र को रिप्रेजेंट? हु इज भारत माता? तो मैंने कुछ बातें लिखी जो आपसे शेयर कर रहा हूं कि कितने कितने नारे, शहादतें, मोहब्बत गढ़ी गई है। और कई बार भारत माता का जयकारा देशभक्ति का सबूत मांगने के काम में लाया जाता है। भारत माता कौन है? द पीपल ऑफ दिस कंट्री, द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, द पुअर, वीकर सेक्शंस, वीमेन, जो भी लोग इस समाज की मुख्य धारा में नहीं है, जो हमसे कमजोर हैं, हम सब। अगर हमारे स्टूडेंट उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते जो मार्जिनलाइज्ड हैं, अगर हमारे स्टूडेंट कास्ट बेस पर, रिलीजन के बेस पर, रीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अगर उनकी सोच में नैरो माइंडेडनेस है, तो आप भारत माता की कितनी मर्जी जय बोल लो, आप कभी भी उस देशभक्ति के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे जो एक्चुअल में देशभक्ति है। कहने को वंदे मातरम कहें पर देश के लोगों की रिस्पेक्ट ना करें तो क्या फायदा? तो कहीं ना कहीं जब आप वैल्यू की बात करते हैं, अल्ट्रुइज्म की वैल्यू की बात करते हैं, नेशनलिज्म की वैल्यू की बात करते हैं, आप पैट्रियोटिज्म की वैल्यू की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात है, इक्विटी की बात है, यू मस्ट फील दोज वैल्यूज फ्रॉम विद इन। इट इज नॉट समथिंग यू मस्ट शो टू ईच एंड एवरी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा प्रेम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें बार बार सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी वैल्यूज है। मुझे ये देखना है कि जब मैं टीच कर रहा हूं तो इनमें से किस वैल्यू को मैं अपने टॉपिक के साथ रिलेट कर सकता हूं। जब मैं आर्टिकल 17 की बात करता हूं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो क्या मेरा स्टूडेंट उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या उन चीजों को इंटरनलाइज करता है कि नहीं, मुझे अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना मन, कर्म और वचन से। ऐसा ना हो कि वो जात को लेकर, धर्म को लेकर उसमें एरोगेंस बहुत हो और वैसे उसके नंबर 100% आ रहे हैं। बट द यूज ऑफ दोस मार्क्स, जब उसने उस वैल्यू को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। फ्रेटर्निटी की बात है, क्या वो दूसरों को अपना समझता है? क्या वो वर्ल्ड सिटीजन है? क्या उसमें जो दूसरों के लिए उसकी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है या उसकी सोच नैरो माइंडेड है? और ये होता कई बार कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको फॉलो नहीं करते। और हमारे मुल्क के बहुत ऐसे लोग हैं जो सैडिस्टिक होते जा रहे हैं। सैडिस्टिक क्या है? जो दूसरों को परेशान देखकर खुश होते हैं। और ये हम में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम बहुत है। जेलसी करना, दूसरों को डिफेम करना, बैक बाइटिंग करना, गॉसिप करना। वहां पर हम वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वैल्यू ऑफ गिविंग स्पेस टू अदर्स, इसको भूल जाते हैं। पाकिस्तान के कमाल के एक शायर हैं तहजीब हाफी। ही सेड समवेयर, सैडिस्टिक लोगों के बारे में, जो लोग दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं, क्या वो कहते हैं तहजीब हाफी कि ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते, ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। और तुम्हारा कोई अपना सफर पर गया तो पूछेंगे, तुम्हारा कोई अपना सफर पर गया तो पूछेंगे, जो रेल गुजरे तो हम हाथ क्यों हिलाते हैं। जब तक खुद पर नहीं पड़ती तो कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि ये गॉसिप जो, इसका फायदा क्या है। अगर मैं सिविक का स्टूडेंट हूं, अगर मैं इन चीजों को समझा ही नहीं, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। सो जितने भी आप बात करते हैं ये वैल्यू सिस्टम की, वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ दीज वैल्यूज। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को मानता हूं तो क्या मैं अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को बराबर का मौका देता हूं? और मैं जब भी अपनी क्लास में इनफॉर्मल सर्वे करता हूं कि आपको टीचर की कौन सी बात सबसे अनॉयड करती है, तो बच्चों का पहला जवाब पता क्या होता है? सर, जब टीचर क्लास में पार्शियल होते हैं, जब क्लास में टीचर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जब क्लास में टीचर नेपोटिज्म करते हैं, जब क्लास में टीचर फेवरिटिज्म करते हैं और सबको बराबर मौका नहीं देते क्लास में अपनी बात कहने का। तो अब देखिए कि वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, वैल्यू ऑफ सेकुलरिज्म,
वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हैं। हमने करना सिर्फ क्या है, हमने जो टॉपिक हम टीच कर रहे हैं उस टॉपिक में ये देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज उस टॉपिक के साथ अटैच हो सकती हैं और उन वैल्यूज को अपने ऑब्जेक्टिव में लिख दें। 2-3 वैल्यूज लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में, 2-3 लिखेंगे जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। और आप ये बात मानकर चलिए कि जब आप ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखेंगे वैल्यूज को लेकर स्पेशली, तो आप खुद ब खुद इन एग्जांपल्स को कोट करेंगे जिनके जरिए बच्चों को समझ आएगा कि जो टॉपिक उनको करवाया जा रहा है उसके साथ कौन सा वैल्यू सिस्टम अटैच्ड है और उस टॉपिक की एक्चुअल में प्रैक्टिकल रेलिवेंस क्या है। भगत सिंह की जब बात करते हैं, भगत सिंह का मतलब ये नहीं है कि आपने एक भगत सिंह की फोटो लगा ली, हाथ में पिस्तौल है भगत सिंह के। भगत सिंह was beyond these type of petty descriptions. He was a true revolutionary. वो जो बंदा सोच रहा है, उसकी बुक है भगत सिंह की कि मैं नास्तिक क्यों हूं, अब उसको पढ़िए, पता लगेगा कि एक्चुअल में वो पर्सन किस वैल्यू सिस्टम को प्रेपोगेट कर रहा था। अब ये देखिए, भगत सिंह को फांसी होने वाली है और वो बंदा उस समय लेनिन की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहा है। यहां से वैल्यू क्या निकलती है, यू मस्ट बी एक्टिव लर्नर थ्रू आउट द लाइफ। जिस बंदे को 5 मिनट के बाद फांसी होने वाली है, वो बंदा एंड में क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। जब आप ऐसा एग्जांपल देते हैं तो हम तो पता क्या करते हैं, मेजोरिटी टाइम एग्जाम है तभी पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि हमने सिर्फ एग्जामिनेशन को मान लिया एजुकेशन। एजुकेशन इज वे बियॉन्ड दीज एग्जामिनेशंस। यू मस्ट बी एबल टू रीड द लाइन्स, reading between the lines, reading of education, और उसको हमने कैसे डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू सिस्टम। मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगर मैं सिविक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं ये एक चार्ट शो करता हूं, इक्वालिटी, इक्विटी, रियलिटी एंड लिबरेशन। इक्वालिटी में क्या है कि मैंने सभी बच्चों को, तीनों बच्चों को जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, मैंने तीनों को बराबर की सपोर्ट दे दी, दैट इज इक्वालिटी। इक्विटी में क्या है, नीड बेस्ड सपोर्ट, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सपोर्ट देनी। रियलिटी में क्या होता है, हैव और हैव नॉट्स के बीच में गैप बहुत है और हमने एक्चुअली सोसाइटी में अचीव क्या करना है, लिबरेशन, जब हर तरह का जो ऑब्स्टेकल है वो रिमूव हो जाए। तो अब देखिए, एक ही तस्वीर के जरिए हम 4 कॉन्सेप्ट्स को कैसे उनको कन्वे कर सकते हैं। पर हमें करना क्या पड़ेगा, वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन फाइंडिंग आउट द वैल्यूज इनहर्टेड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच यू आर टीचिंग द क्लास। आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है, बट सिर्फ अपने माइंड को लिबरेट करना पड़ेगा, अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि भीड़ का जो हिस्सा बनना ये बड़ा आसान होता है, बट अपनी खुद की पहचान बनाना, रास्ता अपना बनाना, ये उतना मुश्किल है पर उतना ही ज्यादा रिवार्डिंग है। वसीम बरेलवी का बड़ा कमाल का शेर है जो यहां पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा उनके बारे में। एहतिजाज एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि कंप्लेंट, शिकायत। तो जो आज भेड़चाल चल रही है, रैट रेस चल रही है मार्क्स की, और ये तो वो क्या कहते हैं, तहजीब हाफी, सॉरी वसीम बरेलवी, एहतजाज मतलब मैंने आपको बताया कंप्लेंट, शिकायत। ही सेड समवेयर कि कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर में जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहां भीड़ की तरफ और यह भी चाहता है उसे रास्ता मिले। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे, अलग रास्ता कभी तलाश नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझने से यह पता चलता है कि कैसे हमने आउट ऑफ बॉक्स सोचकर वैल्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है ताकि अपने बच्चों को कन्वे कर पाए कि उस लेसन में से सीखने वाला क्या है। आप एक फेयर एंड लवली की एड देखते हैं, बड़ी कॉमन सी एड है। आपका वैल्यू सिस्टम आपको बताए कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये रेसिस्ट एडवर्टाइजमेंट है। जब आप किसी के सक्सेस को उसके स्किन कलर से एसोसिएट करके देखते हैं, ये अपने आप में रेसिज्म का सबसे डिस्गस्टिंग एग्जांपल। और हमारे मुल्क में हम आसानी से इन चीजों को बर्दाश्त करते हैं, हम क्लास में बात तक नहीं कर पाते कि ये चीजें कितनी डिस्गस्टिंग है।
और दूसरी जो बात है, हमारे मुल्क में जब आजादी का संघर्ष चल रहा था उसमें बेसिक बात क्या थी? बेसिक बात ये थी कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उनका रेसिस्ट एटीट्यूड था। रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ब्लैक इंडियंस आर नॉट अलाउड। और कितनी अजीब बात है, शॉकिंग बात है कि आज उसी मुल्क के लोग जो रेसिज्म का शिकार रहे, वो दूसरे लोगों को रिडिक्यूल करते हैं स्किन कलर के बेस पर, या स्किन कलर को लेकर हम में इतनी ऑब्सेशन। We need to discuss such type of things in the classroom by associating such examples with the class. गांधी जी को क्यों ट्रेन से बाहर फेंका गया डिस्पाइट ऑफ हैविंग दैट वैलिड टिकट इन साउथ अफ्रीका? क्यों? रेसिज्म था वहां पे। और उसी रेसिज्म के खिलाफ नेल्सन मंडेला संघर्ष करते हैं, उसी रेसिज्म के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग संघर्ष करते हैं अमेरिका में, उसी रेसिज्म के खिलाफ अब्राहम लिंकन संघर्ष करते हैं। और आज हमारे लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनके फिजिकल फीचर्स के बेस पर रिडिक्यूल कर रहे होते हैं। इन चीजों को डिस्कस करने का फायदा क्या है? एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट को इन चीजों की सीरियसनेस का पता चले। और कई बार ऐसा होता है आप कुछ बातों को फॉलो कर रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि ये चीजें इतनी ऑफेंसिव। हम कई बार बॉडी शेमिंग के जोक्स को शेयर कर रहे होते हैं। मैं कपिल शर्मा का शो देखता हूं, सारे के सारे जो उनके जो पंच होते हैं ना, वो बॉडी शेमिंग को होते हैं। कोई मोटा है, ओबेसिटी, किसी को उसका मजाक उड़ा दिया, स्किन कलर का मजाक उड़ा दिया, हाइट का मजाक उड़ा दिया, वाइफ का मजाक उड़ा दिया, उसके फीचर्स का मजाक उड़ा दिया। तो ये अपने आप में देखिए कि हमारी कॉमेडी का लेवल तो डाउन है ही, पर दिक्कत क्या है कि अगर हम इन चीजों को नॉर्मलाइज कर लेंगे, इससे बड़ी दिक्कत हमारी सोसाइटी को कोई नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देखिए, एक मदर अपने बेटे को कह रही है, सैनिटेशन वर्कर को इशारा करके, सफाई कर्मचारी की तरफ देखकर, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल एंड अप लाइक हिम। नहीं पढ़ोगे बेटा उस जैसे हो जाओगे। एक मदर कह रही है, या टीचर, इफ यू स्टडी वेल यू विल बी एबल टू मेक ए बेटर वर्ल्ड फॉर हिम। अगर पढ़ोगे तो इस इंसान के लिए कुछ बेटर कर पाओ। कितना फर्क है दोनों की अप्रोच, और कितना फर्क है वैल्यू ओरिएंटेशन। पहले एग्जांपल में मदर ने उस अपने बच्चे को हेट्रेड करना सिखा दिया सैनिटेशन वर्कर से, और दूसरी एग्जांपल में उस मदर ने पॉजिटिव एक एग्जांपल दी कि बेटा अगर पढ़ोगे तो आप उस पर्सन के लिए कुछ कर पाओगे। दैट मीन्स उसने ये मैसेज दिया कि इस पर्सन के लिए कुछ बेटर करना ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। थ्रस्टी क्रो की एग्जांपल आप सबने देखी होगी, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं थ्रस्टी क्रो जो है वो पढ़ा रहा हूं और एक मॉरल निकलता है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, पर अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को वैल्यू से जोड़ना हो तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आप इसको टीच कर रहे हैं क्लास में, क्या हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को ये पूछें कि बेटा आप ये सारा एग्जांपल देखते हो कि उस क्रो को पानी नहीं मिला, जगह जगह भटकता रहा, मुझे ये बताइए कि उस कौवे के हिस्से का पानी कहां गया? वेयर द वाटर हैज बीन गॉन। अगर हम भी वाटर को सेव नहीं करेंगे तो हमारा हाल भी उस थ्रस्टी क्रो जैसा हो जाएगा, हमें जगह जगह भटकना पड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली हमें पानी नसीब नहीं होगा। जैसे राजस्थान के डेजर्ट्स में लोगों को 20-20 मील चलना पड़ता है पर पानी नहीं मिलता, घड़ों पर रख के लाते हैं पानी, सिर पर रखकर 10-10 किलोमीटर चलते हैं वहां की लेडीज। मतलब एक ही टॉपिक है, उसके साथ आपने एक नई वैल्यू को जोड़ दिया। किसको? वैल्यू ऑफ सेविंग। आपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कैसे करना, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वैल्यू को डेवलप कैसे करना है इस थ्रस्टी क्रो के टॉपिक के साथ। अब बच्चा समझेगा कि थ्रस्टी क्रो के एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक इंटरप्रिटेशन नहीं। अब आप एक पढ़ा रहे होते हैं गुरु नानक देव की कॉन्सेप्ट, आपने देखा कि वो काबा वाला कॉन्सेप्ट है कि मेरा आप पैर वहां कर दो जहां आपका काबा ना हो। इससे वैल्यू सीखने वाली क्या है? वैल्यू ऑफ रैशनैलिटी, वैल्यू ऑफ लॉजिकल अप्रोच, वैल्यू ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैल्यू ऑफ शनिंग सुपरस्टिशन। अगर मैं अपने धर्म में तो इन चीजों को मानता हूं,
और दूसरों को रिडिक्यूल करता हूं, ये भी दिक्कत वाली बात। तो लॉजिक, रैशनैलिटी यहां से सीख सकते हैं। कोई भी आपका टॉपिक है, वहां से मल्टीपल वैल्यूज को आप रिसीव कर सकते हैं। आप उनको पढ़ा रहे हैं महात्मा गांधी को, कि उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, वैल्यू ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फ्रीडम। और यहां पे ब्रीच क्या हुआ? वैल्यू ऑफ इक्वलिटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। इस पर्सन को ट्रेन से फेंका गया और वहां से मोहनदास करमचंद जो है वो महात्मा गांधी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इनजस्टिस को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और अपना एक रास्ता खुद बनाया, जिसका फायदा हमारे फ्रीडम सर्कल को मिला। अब कोई टॉपिक बोलिए, अब जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बना सकते हैं। लाइक जनरल क्या बनेगा? टू प्रोवाइड देम द टू टीच देम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक क्या है? दे विल बी एबल टू कन्वे द मीनिंग ऑफ रियल इक्विटी, दे विल बी एबल टू कन्वे द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। तो आपने जो आप जनरल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं, उसी तरह से वैल्यूज को लेकर आपने क्या करने हैं? ऑब्जेक्टिव बना देने। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं तो वैल्यू सिस्टम से जोड़िए कि व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मे बी लर्न फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे हैं तो उनको आप वैल्यू ये सीखने वाली है कि कैसे अपने राइट्स को एंजॉय करने के साथ साथ दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट देनी। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए उनको ये बताइए कि कैसे कल्चर में कॉन्टिन्यूटी आती है, वैल्यू ऑफ कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। जैसे इंडस वैली में भी पीपल की पूजा होती थी, मदर गॉडेस की पूजा होती थी, आज भी होती है। दैट इज द वैल्यू ऑफ कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, ताकि उनको पता चले कि जो आज उनकी सोसाइटी में चल रहा है ये आज नहीं शुरू हुआ, ये सदियों से चला आ रहा है। आप देखेंगे आपके सेशन 2 में एक टॉपिक है, पेपर है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, आप उसे जोड़ दीजिए। तो आप नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू को बता सकते हैं, आपने कैसे दूसरों के ड्यूटीज को समझना है, अपनी ड्यूटी को कैसे समझना है, ये सारी बातें हमें करना क्या है। अगर आप अपनी इस एबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, यू मस्ट ऑब्जर्व अ लॉट। ऑब्जर्व बहुत कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। ओपन एंडेड अप्रोच, अपने आप को बांधिए मत। एक सवाल है कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। पर अगर मैं इसको बदल दूं कि अगर मैं पूछूं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5 कौन सी चीजें ऐड होनी चाहिए, अब ये ओपन एंडेड बन गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म। वी मस्ट कंस्ट्रक्ट द नॉलेज इनसाइड द क्लास, वी मस्ट कोरिलेट द कंटेंट विद द सोसाइटी आउटसाइड, ताकि उनको पता चले कि अगर गुरु नानक देव का सच्चा सौदा जो उन्होंने पढ़ा, तो उनमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि उन्होंने भी अपने जो अर्निंग होगी उसका कुछ हिस्सा उन लोगों पर खर्च करना है जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो गरीब। अगर वो सिखिज्म में दसवंध को पढ़ रहे हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि हमारी मॉरल ड्यूटी है कि जब हम कमाना शुरू करेंगे तो वो अपने कमाई का 10वां हिस्सा या कुछ हिस्सा खर्च करेंगे, ताकि वो अपनी अल्ट्रुइस्टिक वैल्यू को एक्चुअल में प्रैक्टिस करता। जितनी वैल्यूज हैं, काइंडनेस, कंपैशन, गुडनेस, ओके, लव, ये इन सारी चीजों को जब हमें पता होता ना कि ये सारी वैल्यूज हैं, हमने सिर्फ देखना है कि आपके टॉपिक जो आप टीच करने जा रहे हैं उनमें कौन सी वैल्यू साथ में कोरिलेट हो सकती है। उस वैल्यू को ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख दीजिए। एंड यू मस्ट कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अ शिप इज सेफ इन हार्बर बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर फॉर। सबसे हम सेफ तो अपने कंफर्ट जोन में है, जैसा चल रहा है वैसे चलाएं, बट हम उसके लिए थोड़ी बने। हमारा इंपैक्ट जो है ये तो बहुत देर तक महसूस किया जाना चाहिए टीचर का। जॉन एडम ने जो बात कही थी, अ टीचर अफेक्ट इटर्निटी, ही और शी में नेवर नो वेयर इज इन्फ्लुएंस टू। आपको पता नहीं होता कि आपका इन्फ्लुएंस कहां तक जाता है। हो सकता है कि आपको लगे टीचर्स को
कि सोसाइटी में डॉक्टर्स को या और प्रोफेशंस को ज्यादा एक तरह से वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, बट मुझे लगता है कि जो कमाल के टीचर्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो आपकी पूरी लाइफ आपको इन्फ्लुएंस करता है। यहां पर कुछ बात आपसे मैं और कहना चाहूंगा। वसीम बरेली का एक और बड़ा कमाल का शेर है, सफ का मतलब होता है पंक्ति, लाइन या रो। तो ही सेड समवेयर, टीचर्स के बारे में, सब टीचर्स को मैं डेडिकेट कर रहा हूं कि पिछली सफ में सही है तो इसी महफिल में। ये हम सब सोसाइटी को कह रहे हैं जो टीचर्स की एफर्ट्स को उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते जितना करना चाहिए, कि पिछली सफ में सही, सफ मतलब लाइन या रो, कि पिछली सफ में सही है तो इसी महफिल में आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाएगा खुशबू की तरह। हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई दे, हमारे मैजिक को महसूस किया जाना है बच्चों की तरफ से जब हम उनको पढ़ाएंगे यहां से, दिल से, सिर्फ सिलेबस तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखेंगे। हाइपोथेसिस बनाइए, स्पेकुलेट कीजिए। द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर एबिलिटी टू थिंक इज टू स्पेंड टाइम थिंकिंग। सोचिए, डेलिब्रेट कीजिए, डायलॉग कीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए। सो इट्स ओनली बाय कंसंट्रेटिंग, स्टिकिंग to the question, being patient, letting all the parts of my mind come into play, that I arrive at an original idea. By giving my brain a chance to make associations, draw connections, take me by surprise. हमें पता ही नहीं होता कि हमें एबिलिटी कितनी कमाल की, अगर हम सोचना शुरू करें। You must ask what if. इस बात को ऐसे करें तो क्या होगा, इस बात को ऐसे करें तो क्या होगा, क्रिएटिविटी है। You must step sideway to see another angle. अलग हटकर देखना कि ताकि दूसरा एंगल भी आप साथ में देख पाओ, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। जो टॉपिक आपके पास है उसमें सोचिए कि कौन सी वैल्यू, आप सर्च मारिए, जो स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूं, कि कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। सैकड़ों तरह की वैल्यूज है। ऑब्जर्व कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको समझिए और टॉपिक में उन वैल्यूज को ढूंढिए। क्या अपने टॉपिक के जरिए नेचुरल तरीके से उन वैल्यूज को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, और उनको ऑब्जेक्टिव्स में क्या करिए, लिख दीजिए। ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, सोचिए, आइडियाज को जनरेट कीजिए, ताकि आपके पास बहुत एक कमाल के एग्जांपल्स आ जाए। सो थैंक यू सो मच। टाइम का भी एक कंस्ट्रेंट था, मैंने कोशिश करी कि जनरल चीजों के साथ कोरिलेट करके अपना मैं आपको कुछ कन्वे कर पाऊं मीनिंगफुल। तो हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। Thank you very much, Ajay sir. Your lesson was really very impressive. Our chat box is full of appreciable words for you. Thank you so And much, sir. Thank you. all participants were very happy to listen to you and learn a lot of things from you. Now I request participants to ask question if anyone wants to ask. Any doubts, queries from your side? You're most welcome to raise any doubt, any query. सिर्फ पॉजिटिव रीइंफोर्स मत कीजिए, सवाल भी पूछिए काइंडली। एक 82 साल के एक पैसेंजर को रोक लेती है। इसने अपने शरीर पर सर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूं? जी सर, मैम प्लीज, मैं अभी करता हूँ। बात और बताता है, आपके पेट के अंदर भी कुछ है। Sir, there is one question: how to inculcate values in the era of online education? Madam Seema is asking that question. देखिए, मैं कई बार ना इसके ना इसमें ना सर एक्सट्रीम देखता हूँ ऑनलाइन को लेकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे जी ऑनलाइन में तो कुछ होता ही नहीं है। मैं आज सुबह देख रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन में देखिए बच्चे म्यूट करके बैठ जाते, जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो द वैल्यू ऑफ इनोवेशन,
द वैल्यू ऑफ फार साइटेडनेस। आपने कभी सोचा है कि कोरोना मार्च में 2020 में इरप्ट हुआ और गूगल मीट, जूम वगैरह थे, इन्होंने पूरे एजुकेशन के सिस्टम को बदल के रख दिया। उन लोगों ने विजनरी अप्रोच को फॉलो किया। अब ये देखो कि जीपीएस की आप बात करते हैं, आप बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आजकल हमारे पास क्या फैसिलिटी है कि आपने बोला और कंप्यूटर ने सारा टाइप कर दिया, आपने बोला और न्यूज सारी बन गई। आप मैच देख रहे हैं टीवी पर और जो जो कमेंटर बोल रहे हैं, कमेंटेटर साथ साथ वो टाइप होके आ रहा है। ये सब चीजें क्या बताती हैं कि ऑनलाइन जो सिस्टम है सारा, या जो टेक्नोलॉजी है, इसका विजन हमेशा से बड़ा कमाल का होता है। ऑनलाइन एजुकेशन से आप क्या वैल्यू, मैं क्या समझ सकता हूं कि हाउ टू थिंक इन ए ब्रॉड माइंडेड वे, पहली बात। दूसरा, आपकी विजनरी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, एंड हाउ टू थिंक अहेड ऑफ द टाइम, ये भी एक वैल्यू है ना। हम अपने टाइम से आगे कैसे सोचते हैं। लाइक अगर मैं आज की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था आपके सेमिनार्स का, जो सर कोरोना से पहले होते थे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब से ऐसा नहीं होने वाला कि आप बेंगलोर से आप लोगों को बुला रहे हैं अपने कॉलेज में, नवा शहर में सेमिनार्स के लिए। आपके लिए क्या प्रेफरेंस रहेगी कि आप जूम पे ऑर्गेनाइज करो, सब लोग यहाँ पे आ जाओ और आप अपना बना लो। तो व्हाई टू स्पेंड 2 लाख जब आप उसी काम को 2000 में कर सकते हो। तो मैं जब ऑनलाइन टीचिंग की बात करता हूं, उसमें वैल्यू मुझे क्या लगती है कि कैसे आप एक पर्टिकुलर एक सिनेरियो में ज्योग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन को चेक कर सकते हैं। ये भी तो वैल्यू है ना कि आपने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को या सोशल आइसोलेशन को कैसे अरेस्ट किया और कैसे उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर दिया। वैल्यू ऑफ फार साइटेडनेस जो आपको बता चुका हूं, वैल्यू ऑफ हैविंग विजनरी अप्रोच। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें वैल्यू ऑफ इनोवेशन की बात मैंने करी। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 वैल्यूज जो हैं वो सब्जेक्ट के साथ हम जोड़ सकते हैं। बाकी जो भी और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, दे कैन ऐड एनी इनपुट फ्रॉम देयर साइड। देखिए मैथ सब्जेक्ट की बात, एक सवाल आया है कि मैथमेटिक्स में वैल्यू। देखिए मैथमेटिक्स में तो आप कोहेरेंस की वैल्यू की बात करते हैं, सिस्टेमेटिक आप अटेम्प्ट की वैल्यू की बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में तो बिना सिस्टेमेटिक एप्लीकेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं, आपके पास एक तो लिस्ट हो कि वैल्यूज कौन कौन सी, और उनमें से आप साइंटिफिक वैल्यूज को या मैथमेटिकल वैल्यूज थोड़ा अलग कीजिए। जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में एक बात आती है साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना। अब साइंटिफिक टेम्पर में क्या क्या आता है, ऑब्जर्वेशन आती है, डेटा कलेक्शन आता है, एक्सपेरिमेंटेशन आता है। आपके सब्जेक्ट के साथ वो चीज आप कैसे रिलेट करते हैं। तो मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का मैं हूं तो नहीं, वैसे विकास सर आपको ज्यादा इस बारे में बता पाएंगे, पर अब ये बात मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट में कुछ वैल्यूज जो है वो इनहरेंट होती है और उसने उन्हीं पर वो सारा सब्जेक्ट जो बेस होता है। मैंने शुरुआत में कहा था जब एसएसटी की बात आती है तो सोशल सेंसिटिविटी, सोशल स्किल्स, सोशल अवेयरनेस, ये वैल्यूज हैं। तो मैथमेटिक्स में आप जब टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ते हैं ना आप बीएड में टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली ये दिया होगा कि मैथमेटिक्स को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। जो वो सारा कंटेंट है विकास सर, वो सारी वैल्यूज दी है कि रेलेवेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो जब आप टीच करेंगे तो आप ये देखिए कि इस टॉपिक के साथ आप किस वैल्यू को ज्यादा जोड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल साइंसेस में या लैंग्वेजेस में थोड़ा स्कोप ज्यादा रहता है। मैथमेटिक्स में थोड़ा ना एक आंकड़ों का खेल है सारा, उसी वजह से मैथमेटिक्स मेरे कभी भी पकड़ में आया नहीं, क्योंकि हम सोशल साइंस के बंदे हैं तो थोड़ा हमें मुश्किल लगता रहा है। बट यू कैन इजीली लोकेट द वैल्यू सिस्टम इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। विकास सर, योर इनपुट्स काइंडली। यस सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये बात नहीं है कि मैथमेटिक्स में वैल्यूज को जो है वो नहीं है या अलग तरह की है। गुरुजी मैं नहीं, इतना नहीं देर कर सकता कि मैथमेटिक्स में जो वैल्यूज, मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं। नहीं, मैथमेटिक्स में वैल्यूज जो टीच की जा सकती हैं, वो हर तरह की वैल्यूज जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए भी हम साथ साथ टीच कर सकते हैं सर। जैसे एक परसेप्शन है सर, बड़ी जो प्रेजुडाइस है, वो ये था बड़ी देर पहले, वो ये होता था कि जो लड़कियां हैं उनको मैथ्स कम आता है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है। और एक ये जो है जेंडर इनइक्वालिटी की बात जो आप कह रहे थे वो है। और जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम बाय शोइंग द रिजल्ट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स
ये उनको सिखा सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो जेंडर इनइक्वालिटी नाइदर इन मैथमेटिक्स नॉर इन लाइफ, और इसको हम Exactly, sir. ट्रांसफर कर सकते हैं। और Exactly, ऐसे ही सर कोई भी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट भी क्या सर, कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप, कोई भी टॉपिक मैं बोलता हूँ, अगर ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है ना, बिल्कुल उसने पूछा मैथमेटिक्स में, अगर वो मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक भी ले लेना सर, कोई टॉपिक, उसमें से भी आप 4, 5, 6 वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं, जो Exactly, sir. आप क्लास में वाइल टीचिंग दैट सब्जेक्ट ओनली, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी टीचिंग में, और वो आप सिखा सकते हैं बच्चों को वैल्यू। Exactly, sir. Exactly. मैंने करनी उसमें से। हेलो हेलो हेलो, Yes, हाँ जी yes, मैम। ma'am, please. हाँ जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। Good evening. गुड इवनिंग अजय सर। Good evening, ma'am. सर लेक्चर बड़ा अच्छा ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, बड़ा इन्फॉर्मेटिव। Thank you, ma'am. Thank you so much. Any question from your side? क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मेरा ख्याल पार्टिसिपेंट। देखिए इन्होंने लिखा अनीशा मैम ने कि मैथमेटिक्स इज फुल ऑफ वैल्यूज। मैं कहता हूं कि हर सब्जेक्ट हाँ जी सर, वैल्यू से जुड़ा हुआ है, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल, आप दिस इज नॉट अ देखिए, सब्जेक्ट बेस्ड। सर मैं क्लास में टीच कर रहा था, एक बार ना मैंने करवाना था एसएसटी और मैथमेटिक्स का लिस्ट। मैंने Yes. बच्चों को कहा कि आपने एसएसटी में सोसाइटी को स्टडी करना है, मैथमेटिक्स को यूज किए बिना उठने से लेकर रात तक सोने तक एक भी काम करके दिखा दो। हाँ बिल्कुल सर, वो हम भी पढ़ाते काम हैं करके सर दिखा मैथ्स में कि जो है इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट मैथमेटिक्स। सर पॉसिबल हाँ, नहीं है। हाँ अभी बिल्कुल। देखिए ना, हमारा 4:30 पर सेशन है, कोड है पूरा, उसका टाइमिंग है, हमने हर एक चीज को फॉलो किया ना। अगर ये पता ही ना हो कि 4:30 पर है, मैथमेटिक्स यूज ना करें, तो ये वर्कशॉप पॉसिबल नहीं थी। तो ये भी मैथमेटिक्स है ना कि आपने चीजों को, तो नथिंग इज पॉसिबल विदाउट मैथमेटिक्स, इवन कि नथिंग इज पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज आल्सो, यस सर, बिकॉज़ लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली सर जब ये सेशन भी मैंने शुरू किया तो मेरा बेसिकली पर्पस ये था कि जो हमारा सिस्टम जो है वो बिगड़ रहा है, जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसका जो स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिर रहा है, उसका मेन कारण ये है कि क्लासरूम में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम वैल्यूज पे स्ट्रेस नहीं देते, वैल्यूज को हम इग्नोर करते हैं। अगर हम इक्वालिटी और ये सारी वैल्यूज क्लासरूम में सिखाएं, अगर बच्चों को पता हो, अगर कैरेक्टर बिल्डिंग क्लासरूम में हो, तो फिर हम एक अच्छे जो है वो नेशन में जो हमारे जो सिटीजन हैं वो ज्यादा अच्छे बने, और जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, वो चाहे टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे बिजनेस में हो, अगर हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाने में सफल हो गए तो शायद हमारा जो है सारा का सारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, मैं आप ये देखिए एग्जांपल, रूसो ने एक बात कहती है अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक में कि अ चाइल्ड इज प्योर व्हेन इज बॉर्न, यस इट इज सोसाइटी व्हिच मेक्स हिम करप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को देखिए, 2 साल का बच्चा, आपको लगता है कि उसको झूठ बोलना आता है, बेईमानी करनी आती हो? नहीं, वो तो बेचारा जो देखता है, जो फील करता है, बता देता है। हम उसको रीइंफोर्स कर करके बताते हैं कि भाई आपने ऐसे झूठ बोलना है तो आपको रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। यस क्लास में करवाते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और जब बाहर निकलता है वो ये देखता है कि कोई जितना ज्यादा करप्ट है पर ताकतवर है, उसके आसपास लोग घूम रहे होते हैं, और जो ऑनेस्ट पर्सन है वो स्ट्रगल कर रहा होता है। अब उसके सामने वैल्यू क्राइसिस आ गया कि मुझे किन बातों पे फॉलो करना चाहिए। मैं उन बातों को फॉलो करूं जो टीचर ने कहा है, या उन बातों को फॉलो करूं जो सोसाइटी में एक्सपेक्टेड मेरे से है। हमने सक्सेस की डेफिनेशन को एक तरह से बड़ा तोड़ मरोड़ दी। अब ये देखिए, मैंने कई बार लिखा भी फेसबुक पर या न्यूज़पेपर्स में कि 6 महीने के बच्चे की फोटो डालकर ना फेसबुक पर पेरेंट्स फोन कर रहे होते हैं कि क्यूटेस्ट चाइल्ड कंटेस्ट में वोट दो जी बच्चे को। मुझे एक ऐसा फोन आया तो मैंने उनसे ये पूछा, सामने वाले से, दोस्त से अपने, कि भाई अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि तेरा बेटा क्यूट है कि नहीं, वो 6 महीने का। आप इन चीजों की नुमाइश क्यों करते हो? आप एंजॉय क्यों नहीं करते हो? हर एक बच्चा क्यूट है, हर एक बच्चा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंपटीशन जो आप करवा रहे हो, आपको बता दूं मैं, स्वीडन में और सिंगापुर में उन्होंने ग्रेड 3 तक किसी भी तरह का जो मार्क्स को लेकर रैंकिंग बैन कर दी। उन्होंने कहा कि लर्निंग इज नॉट कंपटीशन ऑलवेज, इट नीड टू बी फन। बच्चा ये क्यों महसूस करे कि दूसरों को पीछे करके आगे बढ़ा जा सकता है? उसको ये क्यों ना लगे कि मैं जब आगे बढ़ूंगा
तो अगर दूसरा भी आगे बढ़ रहा है तो उससे मुझे कोई खतरा नहीं, पर हमने जितनी वो रैंकिंग करी, जो भी करा, तो हमने तो ये बना दिया कि एक ऐसी दौड़ है जिसमें दूसरों को डाउन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही रीजन है कि आप यूथ फेस्टिवल में देखते हैं, कई बार मैंने देखा है जैसे रिजल्ट आपके एडवर्स आया तो बच्चे स्टेज पे जाने को तैयार नहीं होते, नहीं जी पार्शियलिटी होगी, ये हो गया, हो सकता है हुई हो, पर मेजोरिटी केसेस में हमने जजेस को बुलाया आफ्टर यूनिवर्सिटी ने, तो हमें उनको रिगार्ड देना, अपनी बात आपने कैसे कहनी है, ये इंपॉर्टेंट है। पर अगर हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को ही इतना एक रिस्पेक्ट देंगे और जो आपका नहीं सक्सेसफुल हुआ उसकी एफर्ट्स को बिल्कुल नकार देंगे, तो ऐसे ही होगा। वैल्यू इरोजन का सर रीजन ये है कि हमने हुक और बाय क्रुक सक्सेसफुल होने को एंड प्रोडक्ट मान लिया, उससे दिक्कत हो गई। और जॉन डीवी ने एक बात कही थी, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट। जब प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं तो फिर कमाल होता है, फिर रिजल्ट जो मर्जी हो लाइफ में वो कुछ ना कुछ तो बंदा अपना कर लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट हैपनिंग, इसलिए वो वैल्यू सिस्टम को लेकर आज हमारे आसपास इतना क्राइसिस, और लोग वैसे भी ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कम करते हैं। वो कहा था ना किसी ने कि जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। बिल्कुल तो आईना रखते नहीं है, जजमेंट करते रहेंगे तो दिक्कत वही होनी है जो आ रही है। बाकी किसी ने बात करी थी फॉर्मेट की, मुझे लगता है कि हम इसको ना बहुत टेक्निकल ना बनाएं। जब भी मैं लेसन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना इसको ज्यादा उलझाए, लेसन प्लान एक्चुअल में हमारी गाइड होता है कि हमने पढ़ाना कैसे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सारी एनर्जी लेसन प्लान को बनाने में लगा दें और टीचिंग के लिए हमारे पास इनोवेटिव आइडिया बचे ही ना। तो मैं ये मानता हूं कि जब आप वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो मेरा ये एक पर्सनल व्यू है कि हम इन वैल्यू सिस्टम को जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 3-3 वगैरह लिखकर उस नॉर्मल लेसन में ऐड कर लें बस। और जब हम टीच करें तो ये इंश्योर करें कि जो जो वैल्यूज हमने लिखी हैं, ताकि बच्चे को लगे कि जो टॉपिक को कर रहे हैं उसकी एक्चुअल में एप्लीकेशन कहां पर है और वहां से सीखने लायक है, बजाय इसको ज्यादा टेक्निकल किए। ऐसा ना हो कि लेसन लिखना तो बड़ा कमाल का आता है, पढ़ाना कम आता है, तो पढ़ाना बेटर आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एज ए टीचर की लेसन चाहे ठीक ठाक बन जाए, पर अगर उसको असेंस पता है कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेसन और इसको प्रेजेंट कैसे करना, तो उसमें फिर वो कमाल करते हैं। जो मेरा अपना ओपिनियन, यू मे डिफर विद माय ओपिनियन, बट अजय सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में कि हाँ, जैसे मतलब ना जो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जैसे बच्चे या जो भी फॉर्मेट हो, जो भी आप जैसे भी लेसन प्लान बना रहे हो, चाहे वो हर्बेशियन स्टेप है, चाहे वो कोई मॉडल बेस्ड लेसन है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिविस्टिक बेस है, चाहे कोई भी लेसन है, उससे पहले जैसे आपने कहा कि अगर हम आइडेंटिफाई कर लें 4-5 वैल्यू या 3 वैल्यू या 6 वैल्यू जो हम उस लेसन में इनकलकेट करना चाहते हैं, वो आइडेंटिफाई करके उनको हम स्पेसिफाई कर दें, ना सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बट उसके साथ ही सर एक और हम अपना एक वो बना सकते हैं, एक जो कहते हैं उसको कॉलम, जिस कॉलम में ये मेंशन कर सकते हैं कि इस जगह पे हमने ये वैल्यू जो बच्चों को हैं वो इनकलकेट कर दी है। और मेरे ख्याल दैट इज इनफ, there is no need another thing, another planning or another। दो ऑब्जेक्टिव आपके जनरल स्पेसिफिक डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, हाँ और जी, हाँ एक जी, कॉलम साथ में जहां पर आप मेंशन कर दीजिए किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने इस वैल्यू सिस्टम को वहां पर इनकलकेट किया है, डिस्कस करना है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई रिक्वेस्ट Mrs. Karuna Brai, coordinator IQAC, to express word of thanks. Sir Vikas. हाँ जी, Okay, hi everybody. I'm audible, Vikas? yes, yes ma'am, very much ma'am. Okay, so let me begin by extending heartiest congratulations and good wishes to all the members of the organizing team of workshop. The main emphasis of the workshop is to sow the seeds of thinking, discussion, evolution, and innovation in the minds of the learners. And I think we are successful to some extent. Thanks to Rajni ma'am for presenting yesterday's session report in a nice manner. Special thanks to Mr. Ajay Khosla, Assistant Professor, DAV College of Education, Abohar. He presented value-based lesson planning in an excellent manner.
His presentation was full of energy and enthusiasm. He is a multi-dimensional personality, which is the basic requirement of the teacher. So a good model for the learners. Thanks a lot, sir. Your presentation was very nice. In the end, I will give warm regards and thanks to all those who are attending this workshop to make it a success. And sir, so goodbye to all, and we will meet again tomorrow at the same time on the same platform tomorrow evening. Thanks a lot. Thank you.